Okay. So we have to start the resonance. In the resonance part, we already know that when we try to draw a particular molecule, structure of that particular molecule, there are various possibilities. Just like benzene, you can see benzene can be drawn in this format as well as in this format. But both are the structure of benzene. But the actual structure is what? This one. This is hybrid. Hybrid is made by these two resonating structures, which I already discussed with you. But let's again discuss the basics. When one Lewis structure is unable to explain all the properties of a molecule, concept of resonance is introduced. When all the properties of a compound can't be explained by a single representation and two or more structures are required to explain all its properties, then that compound is known to have resonance phenomenon. You can see here, between these two atoms, there is a single bond. Between these two atoms, there is a double bond. When it is observed experimentally, all the bonds are of same length. All the bonds are of same length. So how to explain that? We have taken one structure in which single bond is there. Between the same atoms, there is another structure possible where you can draw double bond. But if you take average, it should be partial double bond. I told you the average of single and double is what? Partial double bond. What is this? Single bond. This is single bond. This is double bond. And this is partial double bond. Partial double bond. Partial double bond. ठीक है. And you can try to learn the data. CC single bond is 1.54, 1.34, 1.39 partial double bond. More than double and less than what? Single. More than single and less than double. क्या बेटा? सर आपने उल्टा बोला. हेलो, क्या बोला आपने? सर आपने उल्टा बोला था. क्या बोला बेटा मैंने गलती? सर आपने बोला more than double and less than single. Less than double, sorry. Less than double and more than double and less than single. Yes. Partial double bond is less than single and more than what? Double. But if I compare the strength of bonds, the partial double bond is stronger than single but weaker than double. And you know that bond length and bond strength are generally inversely proportional. If bond strength is more, bond length is what? Less. Yes. ठीक है. तो बेसिक्स तभी आपको मैंने रिवाइज करने के लिए कहा. सबने रिवाइज किया कल केमिकल बॉन्डिंग? हाँ सर. कितना हो गया उसमें रिवाइज? पूरे नोट्स रिवाइज हो गए? हाँ सर पूरा रिवाइज किया. वेरी गुड.
If the molecule is iron, the charges will be what? Delta negative, delta positive. And you also have drawn yesterday the structure of phenol, in which you found what? Partial negative and partial positive charge. And there's a partial bond also. So resonance, with the help of resonance, we can explain the actual molecule by introducing what? Partial bond and partial charge. इंडक्टिव ओमकार दिमाग में सेट हो गया अच्छे से? हाँ सर। Tell me the basic strength of amines if alkyl is methyl. अगर alkyl methyl है तो what is the order of basic strength? Sir, 2 degree, 1 degree, 3 degree, and NH3. Very good. Because I didn't mention the solvent, है ना? I didn't mention the solvent, so it will be what? Always water or aqueous medium. And if it is ethyl, Sir, 2 degree, 3 degree, 1 degree, and last में NH3. ये दोनों NCERT के थे, दोनों याद हो गए. हाँ सर। But if I tell you compare the basic strength in gaseous phase, तो क्या लेना है? अगर गैसियस फेज ले लिए तो ऑर्डर क्या है? Sir, 3 degree, 2 degree, 1 degree, and NH3. Always. Why? Sir, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टेबलाइज कर सकता है। और उसमें कौन सी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आप यूज करेंगे अभी तक जो पढ़ाया गया है? कौन सी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिस्कस की गई अभी तक? सिर्फ इंडक्टिव। इंडक्टिव। उनका मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? हाँ सर। तो सबसे पहले डेफिनेशन, रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस. इंट्रामोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, इन विच पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और बोथ चेंजेस विदाउट चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम्स और सिग्मा. तो पोजीशन ऑफ एटम चेंज नहीं होती, सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं होता. क्या चेंज होता है? पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन एज लोन पेयर एज वेल एज लोन इलेक्ट्रॉन, दोनों ही पॉसिबल है.
अच्छा ओमकार, whatever chapter we finished, we covered in physical chemistry. Did you finish from N Avasthi also? सर हर एक चैप्टर नहीं हुआ, मोल कंसेप्ट और एटॉमिक हो गया मैंने आज से। तो ऑर्गेनिक आपको मौका देगा? हाँ ऐसे स्टेट कर लूंगा अभी एनालिसिस से। हाँ, मतलब कर लीजिए आराम से, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो ऑर्गेनिक आपको मौका देगा टू फिनिश दोस, है ना? अभी कॉलेज एग्जाम भी होगी आपकी, कॉलेज एग्जाम स्टार्ट होगी ना शायद 4th से, शेड्यूल आ गई है ना? नहीं डेट तो आ गया है शायद, नहीं आया है? सिलेबस आ गया ना? नहीं सर कुछ नहीं सिलेबस हम किसी बच्चे ने भेजा था, मुझे पूछना, जाके पूछना सेंटर से। अच्छा रिकॉल करना, रिएक्शन मैकेनिज्म इज it रियल और इमेजिनरी? बोलिए। जो रिएक्शन मैकेनिक्स हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में, टू राइट द स्टेप्स, वेरियस स्टेप्स ऑफ अ रिएक्शन, दोज आर इमेजिनरी और रियल? imaginary. Imaginary, because we are writing those. Since we are writing those, we are thinking about those, तो imaginary हो गई. We cannot see those react those steps. बट ये सारे जो इमेजिनरी स्टेप्स होते हैं वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो हेल्प करता है हमें कि रेट लॉ कैसी होती होगी, कैसा होता होगा. सेम लॉजिक इन द केस ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस इज आल्सो इमेजिनरी बट इट हैज इनफाइनाइट यूजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो जो भी चीजें इमेजिनरी हो रही है वो सबसे ज्यादा यूजफुल दिखेगी आपको. रेजोनेंस इज इमेजिनरी, फिर आप पूछेंगे सर ये दोनों स्ट्रक्चर्स तो इमेजिनरी थे, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या थे? इमेजिनरी थे, ये हमने सोचा होगा. और ये कैसे है, इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट ये क्या है आपका? रेजोनेंस हाइब्रिड. हाइब्रिड। हाइब्रिड है तो ये रियल है आपका. अगेन रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, वो भी तो नहीं दिखेगी ना हमें, वो तो अभी तो हम इमेजिन ही कर रहे हैं. टू ड्रॉ द हाइब्रिड, to combine all the structures, to take the average of all the structures, we have to draw what? Resonance hybrid. Next है आपका resonance hybrid. It is the actual structure. रेजोनेंस में तो लगता है उनका घर पे भी ज्यादा नहीं देखना भी नहीं पड़ेगा इसको, तो सारे पॉइंट्स आपको पता है. बीच बीच में लेकिन पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग बहुत लिमिटेड रेजोनेंस पड़ते हैं. ये भी समझाया था ड्यूरिंग द ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स
प्लस आर इफेक्ट किसका होता है, माइनस आर इफेक्ट किसका होता है? हाँ सर। प्लस आर इफेक्ट लोन पे डोनेट करते हैं, इवन इटू वाले माइनस आर शो करते हैं, ये सब समझाया था। हाँ सर। ओके check the definition of resonance hybrid. क्या लिखता है? It is the actual structure representing molecule without violating the rule of covalent maxima. It means carbon cannot form 5 bonds, 4 bonds ही होंगे कार्बन के। अच्छा, what is the condition for resonance? बताओ, anyone? सर कॉन्जुगेशन कॉल होना चाहिए। Conjugation should be there, है ना? And what kind of conjugation do you have? तो कंडीशंस तो हम अच्छे से पॉइंट वाइज लिखवाएंगे आपको, लेकिन मेजरली क्या है हमें शो देखनी होती है, देयर शुड बी कॉन्जुगेशन। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्जुगेशन? सुमित बोलो। सुमित, कल आपसे गलती हुई थी ड्रॉ करने में, काफी मतलब कॉन्सेप्चुअली ही रॉन्ग था ना? सुमित, हाँ सर। हाँ, वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए था बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका होना चाहिए था सही। अच्छा, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, रेजोनेंस रेजोनेंस हाइब्रिड की या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की? सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। अगर उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी डेफिनेटली कम होगी। हाँ सर। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज, विद सारे लेस पॉइंट्स मैं रेजोनेंस हाइब्रिड का लिख रहा हूँ, ऑलवेज लोअर इन एनर्जी and greater in stability than any one of the contributing क्यों लिख रहे हैं जरा बताओ तो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ राइटिंग कंट्रीब्यूटिंग? सोच के बताइए थोड़ा सा। रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने के लिए जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम लोग इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स मिला के बनाते हैं। यस, तो कंट्रीब्यूटिंग क्यों? सिंपली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख सकते थे। एक अलग से एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या जो लॉजिक है? ठीक है, सेंटेंस को थोड़ा सा हेवी बनाने के लिए, लगता है हाई फाई बनाने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्चुअली इसका क्या यूज है कंट्रीब्यूटिंग का? क्योंकि अच्छा हर एक attempt। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड बनाने का या फिर डेल्टा पॉसिबल। हर एक जब हर एक ही करता है तो शुड बी द ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो व्हाई इट इज कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? सर जो ज्यादा स्टेबल रहेगा उसे कंट्रीब्यूटिंग बोलते जो हैं। रिलेटिवली स्टेबल रहेंगे, जो बहुत कम स्टेबल होंगे उसको कंसिडर नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग यूज नहीं करते। तो एग्जिस्टेंस तो बेंजीन की हो रही है, बेंजीन के स्ट्रक्चर्स, द रियल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन को एक्सप्लेन करने के लिए वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस व्हाट योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
Now, tell me anyone, what is resonance energy? या पहले बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस कर लेते हैं. What is bond order? General definition of bond order. Why using valence bond theory? What is bond order? If I use valence bond theory. Anyone tell me? What is bond order in general definition? Sir, difference between bonding and anti-bonding electrons. No, I asked you viability, na? Sir, तो फिर number of bonds that can be formed. आप लोग नोट्स रेफर कर रहे हो या सोच के बोल रहे हो? नहीं सर, बोल रहे हैं बस. तो आंसर क्विक नहीं आ रहा. सर श्योर नहीं था सर. सबसे पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं सो दैट आपको बॉन्ड ऑर्डर को आइडिया लग जाएगा, चार्ज के आइडिया लग जाएगा. As per VBT, bond order is what? Number of bond between two specified atoms. As per MOT, what is bond order? Bonding minus anti-bonding. ABM. NB minus Na upon 2. है ना? NB minus Na upon 2. Where Na is what? NB is bonding number of BMO electrons. Na is number of ABM. ABMO electrons. Anti-bonding molecular orbital, bonding molecular orbital. किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, BMO या ABMO की? सेम शेल में, सेम सब शेल में ना? हाँ, सेम सब शेल में. 2s स्टार, 2 सिग्मा 2s स्टार, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? स्टार की. स्टार क्या होता है? ABMO. 2s स्टार की ज्यादा होगी. हाँ. सर वो MOT में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है ना? तो क्या वो बेटा क्यों- बोलो? MOT में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है ना? तो वो क्यों होता है, वो वापस एक बार बताओगे क्या? वो उसका रीजन नहीं बताया था हमने. वो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है. एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, उसमें बस हम लोग ये ऐड करते हैं कि टिल 14 इलेक्ट्रॉन्स sp मिक्सिंग हो जाती है ना? हाँ सर. जिससे जो सिग्मा 2pz की एनर्जी pi 2px से क्या होती है? ज्यादा.
उस ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटली लिखते हैं। In the case of atoms, in the case of atomic orbitals, we use what? Your electronic configuration rule, Aufbau principle, Hund's rule, maximum multiplicity, सब करते हैं। Aufbau principle जैसा कोई रूल नहीं है वहाँ पे। Aufbau में क्या है? Aufbau में नहीं, वो भी n+l rule जैसा। And Aufbau principle तो simple है। Electrons are filled in the increasing order of their energies. तो उसमें n+ रूल जैसा कोई रूल यहाँ पे MOT में नहीं है। क्या फॉर्मूला था बताओ? जिसमें रेजोनेंस होगा, तो जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसमें रेजोनेंस होगा ऑब्वियसली। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बॉन्ड ऑर्डर हैविंग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? क्या था? देखिए ओमकार, सुमित, अगर आप लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए टॉपिक में ही स्ट्रगल करेंगे थियरी में, आई एम नॉट आस्किंग एनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इससे कोई टॉपिक है जो हो चुकी है, उसकी थियरी में ही अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं आंसर देने में, तो उससे रिलेटेड डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे बन पाएगा? और ये प्योर मेहनत के ऊपर है। पुरानी चीजें दिमाग में रखना मेहनत के ऊपर है। शार्प माइंडेड को तुरंत याद हो जाएगी, नॉर्मल हम जैसे इंसानों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवाइज करनी पड़ेगी ज्यादा, ये डिफरेंस है। अदरवाइज डिपेंड तो मेहनत के ऊपर ही है, इंटेलेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा पुराने टॉपिक। तो अकॉर्डिंग टू VBT, bond order for molecules having equivalent resonating structures, total number of bonds between two atoms in all the resonating structures upon total number of resonating structures. Example, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एग्जांपल एक आप खुद से करना। CO3 2- कार्बोनेट आयन, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं? अगर आप पुराना थ्योरी रिकॉल करेंगे तो क्या था बेटा? ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या है? डोनेटिंग ग्रुप है। तो क्या बन जाएंगे? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, वही पुरानी चीजें रिवाइज हो रही है जिसमें आप एक्सपर्ट हो गए हो। कल भी आपने बना के दिखाया था, बहुत सही। बहुत लोगों ने छोटी मोटी गलतियां की थी पर फाइनली बन गया था। So there are 3 resonating structures. अब मैं एरो इसलिए बना दे रहा हूँ क्योंकि अब ऑलरेडी सिखाया हुआ है, कुछ नया नहीं है। नया होता तो नहीं लिखता मैं एरो। एरो तो पता ही आपको कैसे बनाते हैं। उसकी हाइब्रिड this. Bond order between carbon and oxygen क्या लिखेंगे? Total number of bonds between two specified atoms in all the resonating structures. Just revise it. मान लो हमने ये एटम फिक्स, सबसे बड़ी चीज देखिए पहले, विदाउट चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम्स एंड सिग्मा बॉन्ड। चेंज क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है। तो किसी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी। चेंज किसकी होगी?
पाई इलेक्ट्रॉन्स की चेंज होगी। तो एटम फिक्स है, तो दिस टू एटम्स आर फिक्स्ड अपने पोजीशन पे। इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बॉन्ड्स हो गए? 2 + 1 + 1 अपॉन 3, दैट इज नथिंग बट 4/3 इक्वल टू 1.33 लिख सकते हैं इसको। 1 and 1/3 भी लिख सकते हैं। 1 एक सिंगल बॉन्ड हुआ और 1/3 क्या हो गया? पार्शियल। 1/3 represents what here? Partial. If I talk about charge on oxygen, क्या होगा? फर्स्ट में 0 चार्ज, सेकंड पे -1, थर्ड पे -1 अपॉन 3, दैट इज -2/3, -0.667 भी लिख सकते हैं। यही आपका क्या है? पार्शियल नेगेटिव। ये तीनों क्या है? रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये क्या है? हाइब्रिड। तो आपको पार्शियल नेगेटिव भी डिसाइड करना आ गया, बॉन्ड भी डिसाइड करना आ गया, बॉन्ड डिसाइड करना आ गया। एग्जाम्पल 2 आप खुद से करिए। NO3- नाइट्रेट है, उनका साथ में लिख रहे हैं, साथ में हो जा रहा है लिखना। सर थोड़ा बाकी है सर, रेजोनेंस कहाँ? फैब्रिक तक लिखा है कहाँ बेटा? उसके हाँ डेफिनेशन। ठीक है, 2-3 एग्जांपल दे देते हैं आपको हम, वो दोनों एग्जांपल आप घर पे कर लेना। नाइट्रेट आयन, ओजोन वाला, सल्फेट आयन, सब क्लास में करवाया हुआ है, सब डिस्कशन किया हुआ है ना, नथिंग इज न्यू। कल 7 o'clock, ठीक है ना? हाँ सर। और 6 बजे रख लें, 6 बजे। सर कल आप सर केमिकल कभी भी बॉन्डिंग रहते पूछने वाले हो? क्या बेटा? कल आप केमिकल बॉन्डिंग पूछने वाले हो? पूछ लेंगे, आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं बताएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। मैंने तो आपको पढ़ने के लिए, मैं अपने क्लास के टाइम पे पढ़ने के लिए कहा, कोई एक्स्ट्रा टाइम तो पढ़ने के लिए कहा नहीं। डर से मत पढ़िए, समझ रहे हैं? केयर से पढ़िए कि आपको मैंने पढ़ने के लिए कहा है, तो आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, प्रिवाइज करके बैठना चाहिए क्लास में। ठीक है, उनका बढ़े आगे। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाल देता हूँ। देखो, हमने मेंशन नहीं किया कि बॉन्ड ऑर्डर किसका निकालना है, पर अगर वो इक्विवेलेंट होगा, अगर वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होगा, तो दोनों एटम जो सिलेक्ट करोगे आप, वो सेम ही होगी। C is attached to oxygen only, तो तीनों ही ऑक्सीजन ही होंगे डेफिनेटली, तभी तो इक्विवेलेंट बनेंगे। इफ आई चेंज द एटम, इट कैन नॉट बी इक्विवेलेंट ना। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर एंड पार्शियल चार्ज इन दी फॉलोइंग। अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हमने कि कौन सी दो एटम की बात कर रहे हो आप। ऑब्वियसली कौन सी दो एटम होगी वो डिसाइड हो जाएगी।
Compounds exhibiting resonance have lesser heat of hydrogenation, lesser heat of combustion. अब ये सब चीजें उतने डिटेल्स में हम लोगों ने शायद नहीं किया होगा या गया भी होगा. Lesser heat of hydrogenation, lesser heat of combustion. जिसमें रेजोनेंस होगी उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, कम होगी, स्टेबल होगा, उसको ब्रेक करना क्या होगा, मुश्किल होगा, एनर्जी कम रिलीज होगी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों डेल्टा एच क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं जनरली, और ये डेल्टा एच तो पॉजिटिव ही होता है. दोनों नहीं, सिंगल. इसको आप रखिए और सिर्फ इसको पॉजिटिव. ऑब्वियसली मोर हीट ऑफ डिसोसिएशन है, ब्रेक करना. ब्रेकिंग मीन्स व्हाट, ब्रेक करेंगे तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. पॉजिटिव का मतलब ही क्या है, एंडो, और नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सो. जनरली लिखा है मैंने, ये जनरली क्या होगा नेगेटिव, जनरली क्या होगी पॉजिटिव. तो हेल्प समझने में थोड़ा सा क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी. Heat of hydrogenation is proportional to one upon stability. Heat of combustion is proportional to one upon stability, and delta H formation is proportional to. What is the learning of this? If I get higher heat of hydrogenation from a molecule, it means the stability of that particular molecule is what? Less. If I get higher value of heat of formation, it means the stability is what? More. Same with combustion. If I burn a particular compound and if I'm getting more heat of combustion, ज़्यादा heat मिल रही है, higher heat of combustion मिल रही है, higher heat of hydrogenation मिल रही है, ज़्यादा heat release हो रही है, तो उसकी stability relatively क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. I will take some examples also to explain this, but पहले दिमाग में fit करिए. If a molecule is stable, then its heat of hydrogenation is what? Lesser. If its stability is less, it has higher heat of hydrogenation. They are inversely related. तो मैं पूछता हूँ एग्जाम्पल एक. क्विक आंसर दीजिएगा. कंपेयर